Coming to 80 blocks. Coming to the academy block, yeah, that's the right answer. Okay. Morning assembly. Okay, so I have a definition for morning assembly. I hope you do like that. It's a dictionary, it's a complete dictionary definition of the morning assembly. Stay with us. Thank you. Now after this, to showcase the talent of this Navodaya, what presently do we have? I would like to call on stage Abid, 8th class, to showcase his performance. Biliyorlar? Tabii ki nasıl ben makarna. Maar ik vind je dat jong moet.
सानो जुम थोड़ा जर्मनी से निकले, ईयर 2007 जब हम यहाँ से निकले, तो कोई दिनों पर जब सारे एक साथ फिर से बैठेंगे मिलेंगे, क्योंकि एलुमनी का कंसेप्ट तो हम सबके दिमाग में था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ज्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी लंच टाइम भी हो गया है, तो ये छोटे छोटे भी होगी, और पीछे जो बड़े बच्चे बैठे हैं भी है, पीछे बोल रहे थे। तो कोई कुछ नहीं बताया गया था कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे आना है, बट मैं शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा अपनी कि मेरा सफर कैसा रहा जिंदगी का, बीइंग अ जेएनवी स्टूडेंट। I was never in good books of my teachers. मैं हमेशा अपने बुरे कामों के लिए मारा जाता था। Let me confess. So I was always target for Dhol साहब, हमारे assistant principal sir, आज यहाँ पे है, बहुत मिस किया उनको। I was always target. तो मेरे को नजर रहती थी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। So I was not in good books, but at the same time I was very good at dancing. I was being known as a good artist. ठीक है, कुछ क्वालिटीज मेरे में भी थी, और जब मैं यहाँ से बाहर निकला, बट मैं स्टडीज में अच्छा नहीं था। स्टडीज में भी अच्छा नहीं था, बात घोड़ा था एक नंबर का, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो अलग सी दुनिया देखी, ये दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है। उस दुनिया में जैसे मैं कुछ सारी चीजें मुश्किल लगी स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, और 12th के बाद मैं डायरेक्टली 5 ईयर लॉ के लिए चला गया। 5 ईयर लॉ में थोड़े अर्से के बाद मैंने अपने जूनियर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। इन फंडी कंप्लीट में LLB है, अभी तक मैंने कोई केस हारा भी नहीं। तो लेकिन ये सब मैं कैसे कर पाया, बिकॉज आवाज नवोदित सिर्फ इसलिए कर पाया, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पहले भगोड़ा था, उधर इधर भागना, एक फेलियर नहीं। तो जितने भी के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं मिस कर रहा हूँ आज की मेरा पढ़ाई अच्छे टैलेंट रहता है, सिंगिंग वगैरह, ये सब आपका पढ़ाई के बाद आता है। तो पढ़ाई पे आप फोकस कीजिए। तो पढ़ाई में लेकिन आपको 24 आवर्स नहीं देने हैं, बीट 12 आवर्स, बीट 6 आवर्स, बीट 3 आवर्स a day, 3 आवर्स और काफी है। 3 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हो बहुत है। तो पढ़ाई से फोकस कोई नहीं हटाएगा। तो बाकी जो आपके पास टाइम बचता है 3 घंटे 4 घंटे, उसमें आप जो है जो आप साथ में लेके चलते हैं, आपका डांसिंग का शो, आपका सिंगिंग का शो। Give me charming faces, please. Give me charming faces. I love you all being Navodians. Who are out of this Navodi? For this I will praise all my teachers who have been, according to जो भी आए थे, who are targeting me, who are behind my back saying this is wrong, you are wrong, we all are wrong, but we are Navodians. Isn't it? We eat much, don't we? We get a full plate, don't we? Is it still there? Is it still there? Yeah, we skip. So this is part of life. This is how we grow. Now when I first entered here, in the 10th class I remember, this Navodia was a curse on me. Complete curse on me. Going back to my home, talking to my family, I love my teachers, I love my colleagues, and I love you all. This is the thing I want to share with you. So don't feel hungry, don't feel bored. You got a lot of things to do in your life, and always try to be Navodian, and Navodians are leaders. Do you believe it? Yes. Very difficult to adjust in only 2 days, and after 2 days you people will be leaders. So studies, yeah, best option, but fun with the studies is a better option. Go for fun and studies together, and that is here. So with these words, I will take a leave. I am Munirana. Any girl having height above 5'8", any boy having height above 6 can come and join academy in university which is going on. You people are future to be in a volleyball. So you are all invited. You can come and join my academy. Thanks a lot for calling me here. Bye.
you very much. We'll remember. Is one admirer of long hair, aren't you? Is the barber coming here too? To cut off your hair? But don't worry, that is going to be over when you'll be out of it, okay? You can have a long hair like me. Love you. Maybe in life, you people are facing problems. Actually, each and every one, we are facing those problems. We are emotionally drained, we are mentally drained. But that's not the thing. Believe me, I want you to do with your problems by becoming rich. I want you to do with your problems. Go face them. Go and face them. I want you to work hard. We together can accomplish feats. The impossible feats that humankind we have ever accomplished. We Navodayans, we can change the way. We can change the way the world is. We have the potential in us. I want you all to work together. I want you to work hard. I want you to work until your signature becomes your autograph. I want you to work hard until your ideals become your rivals. I want you to change the world together in a spiritual manner, and I want you to be proud to say that we are Navodayans. Now, at last but not least, I would like to call on stage Sujit Kumar Rai sir, PGT Chemistry JNP Gandapal, to deliver the vote of thanks. So please welcome him with a round of applause. Principal sir, dear colleagues and dear ex-student and attending student, good afternoon. सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ 2 लाइन से। खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा, खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। न जाने कौन सी दुआ कबूल हुई होगी, न जाने कौन सी दुआ कबूल हुई होगी हमारी, न जाने कौन सी दुआ कबूल हुई होगी हमारी जो उसने आपको हमसे मिलाया। इसमें आप भी प्लानिंग बनाकर यहाँ आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि इससे अच्छा प्रोग्राम होगा। हम लोग आपको प्रॉपर इन्विटेशन देंगे और इसके लिए सारी आपको इन्विटेशन हम नहीं दे पाए, एक बार फिर सारी उसके लिए बोल रहे हैं हम विद्यालय परिवार के तरफ से। और पिछली बार भी हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उससे अच्छा इस बार है। आप सब बहुत से लोग आए हैं। मैं यहाँ 10 साल से हूँ और यहाँ बहुत से अभी टीचर हैं जो 10 साल से, इसमें मैक्सिमम चेहरे चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, मैं पहचान रहा हूँ उनको। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर्सनली विद्यालय परिवार को भी खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, आप लोगों को कैरियर देखकर। रियली आप लोगों से जब मिलते हैं तो फिर मुझे पुराने दिन हम लोगों को आ जाते हैं अपने याद और अच्छा लगता है आप लोगों से। और हम लोग चाहे इसके अलावा मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने विद्यालय परिवार के हमारे जो सभी कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ वो भी अपने काम में लगे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और जो हमारे बच्चे यहाँ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, फैजान अली और वानी तमन्ना, उनको भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से संचालन प्रोग्राम का किया। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं उन बाकी जो यहाँ स्टेज पर आए हैं बच्चे जो अपना प्रोग्राम दिए हैं, कव्वाली के, उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से। हम वो सभी बच्चे जो यहाँ चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या फिर प्रोग्राम में लगे थे, हम उन बच्चों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम आप सभी को जो अध्यापक हैं यहाँ जो यहाँ अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं विद्यालय परिवार से। और बाद में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो ये व्यवस्था किया है सबकी, हम उसके लिए प्रिंसिपल सर और उनके टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अगली बार से कोशिश होगा कि इससे अच्छा प्रोग्राम हो और आप सभी को अच्छे से इन्विटेशन मिलेगा, आ सकें। वैसे भी देखिए अपने घर में बुलाने के लिए करने के लिए कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कम्युनिकेशन जरूरी है लेकिन इन्विटेशन की जरूरी नहीं है। अपने घर में तो बिना बुलाए आना चाहिए, आपका घर है। तो एक बार पुनः हम आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं इन्हीं लाइनों से। खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे तेरे रास्ते, सदा खुशियों से भरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पर रहे इस तरह,
हंसी तेरे चेहरे पर रहे इस तरह, खुशबू फूल के साथ रहे जिस तरह, फूल के साथ। धन्यवाद। फिर एक बार आप सभी लोगों को शुक्रिया। अगर आपके इन्विटेशन नहीं मिले उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, विद्यालय परिवार से क्षमा मांगता हूँ। प्लीज इसको आप भूल जाइए। और फिर से धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। Thank you very much. Now we are reaching towards the end, and now to make a formal announcement, I would like to call on stage Farooq sir. Farooq Malik sir. Thank you very much, Sujit sir, for presenting vote of thanks. Now I am going to make one important announcement to all of you. These alumni, they will move to their ancestral dining hall, where they will be served with a light, and after that they will be seen off by the Vidyalaya staff members and our own students. They will move to their houses after lunch because their examination is waiting for them. Tomorrow they are writing their FA2 examination. No student is allowed to go outside. No student is allowed to be seen in the ground or any other places. This is the announcement. Now over to Faizan, please. Okay, you were awesome. And this was Wani Tamanna and meet Faizan Ali. Thank you for believing in us, because we believe in you. Thank you. Now with this, I wish you all Godspeed and best of luck. Thank you very much. Now I believe that you all must move to your respective positions. Alumni to the dining hall, and rest of the students, you may first sit here, and after this you will move.
जितने भी एक स्टूडेंट्स थे, आज सब लोग यहाँ पे आए। तो क्या लगा आपको यहाँ पे? यहाँ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पुरानी यादें थी बचपन की वो सारी जिंदा सी हो गई। हालांकि हम कभी भूले नहीं, क्योंकि जेनवी जो स्टूडेंट्स होते हैं 9 दिन हम फैमिली की तरह रहे हैं हमेशा, चाहे हम जेनवी गांधरबल में रहे, जेनवी पुलवामा में रहे, लेकिन जब भी हम मिलते थे एक जेनवी से दूसरे जेनवी, कभी स्पोर्ट्स के लिए कभी कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे, तो हम हमेशा फैमिली की तरह है, तो कभी भूला नहीं था। बट बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि सब लोगों से मिले आज। एक डेकेड हो गया तब से जब आप यहाँ निकले, आपको लगता है कोई फर्क है यहाँ? देखिए, जहाँ तक सवाल है एक डिकेड का, बचपन की यादें ऐसी होती है कि जो हमेशा याद रहती हैं, तो कुछ भी नहीं भूला है। जैसे ही यहाँ आए तो बचपन में वापस चले गए, कुछ भी नहीं भूले। यानी कि नॉस्टैल्जिया। एग्जैक्टली। जेएनवी समिति ने इस साल एक अहम फैसला लिया, जो अब हर साल ये एलुमनी मनाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? कोई अच्छा फैसला है? कि बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि इससे एक चीज़ होगी, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फायदे होंगे इसके। जैसे कि पुराने स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिलेंगे, पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट पे कौन सा लड़का है, और एक फैमिली का जो मतलब है, तो साथ रहने का मतलब बनेगा, आगे भी साथ रहेंगे। और जो नए बच्चे हैं जेएनवी में इस टाइम, उनके लिए भी मतलब जब वो सामने आएंगे तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जैसे आएंगे। राज जी, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब ये जो कुछ जो अभी लड़के यहाँ से निकल गए, एलुमनी जो आज आए, उन्होंने कुछ अचीव किया है? क्या आपको लगता है इससे जो यहाँ पे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, बीइंग नवोदय इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट, ठीक है। अगर कोई नवोदय है तो उसने पहले ही कुछ अचीव किया है, तो आगे जाके वो सक्सेसफुल रहता ही रहता है, वो फेलियर नहीं होता कभी भी। चाहे वो बेशक कोई ऑफिसर ना बने, IAS ऑफिसर ना बने, वो बिजनेस में ही जाए, लेकिन तब भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसको पता होती है कि लाइफ कैसे जीनी है। वो इंडिपेंडेंट रहा होता है एट द एज ऑफ जस्ट 12-13, वो इंडिपेंडेंट रहा होता है, उसको पता होता है चीज़ों को कैसे संभालना है। जाहिर जी, अगर आपको एक मैसेज कहेंगे जेएनवी स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? यहाँ के बच्चों को मैंने ऑलरेडी मैसेज दिया है कि आप नवोदयंस हो, आप प्राउड करो कि आप नवोदयंस हो, आपको जो मिल रहा है उसको सीखो अच्छी तरह, और बाहर जाके आप लोगों में अलग दिखोगे। लेकिन मैं यहाँ तक अपनी सीमित नहीं रखूंगा, मैं अपनी सजेशंस आगे बाकी बच्चों को भी दूंगा जो जेएनवी आने से डरते हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि आप भी ऐसे स्कूल में आइए, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद ही कहीं और किसी और स्कूल में आपको मिलेगी। थैंक यू। नेम सर? मुनीर आलम। मुनीर सर, आप कौन से बैच के हैं? 1999। 1999 के बाद आज आप यहाँ पे आए, इससे पहले आप नवोदय में कभी आए थे? हाँ, मेरे जूनियर थे यहाँ पे, कैस्टल और इकबाल, उनसे 2 बार में मिलने यहाँ पे, बिकॉज दे सूट मी टू बी एज अ ब्रदर्स। तो उसके बाद आज आप यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है आपको नवोदय में आके? नॉस्टैल्जिया, मुझे लगता है आई एम द ड्रीम विच इज स्टिल टू कंप्लीट एंड फुलफिल। Being a Navodaya student, what would be your message to the students of this very institution? There is a simple message. You are here through entrance exam, that means you are something. You are toppers, that's all. Feel like toppers. और सर, आपने यहाँ से जाके भी कुछ फेस किया होगा, क्या लग रहा है आपको? एक नवोदय स्टूडेंट और बाहर के जो बाकी आम स्कूलों के स्टूडेंट्स, उनमें क्या फर्क लगी आपको सबसे बड़ा? If you have played a chess, there is a one, like there is a queen, we call it. All the Navodayans are queen of chess. They can move everywhere. Myself Shabir Ahmad Dar. शब्बीर, आज यहाँ पे एक एलुमनी मीट के लिए बुलाया गया था आप सबको यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, तो इट वाज नाइस कि जो पुरानी यादें थी, पुराने लोग थे, उन सब से मुलाकात हुई, हमारे सीनियर्स से या जूनियर्स से, उन सब से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। हमेशा ये है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो एक सीखने का मौका होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, किसी भी पोस्ट पे हो या अनएम्प्लॉयड हो, डजंट मैटर, सीखने को मिलता है। तो वही हमें आज लगा यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लगा। शब्बीर, आप अपने बैच के टॉपर भी रहे, उसके बाद आपने अभी आप जॉब भी करे, गवर्नमेंट जॉब करे। आज आपने देखा होगा कि आपको यहाँ आते हुए जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो आपको जो आपको जानते भी नहीं थे, वो भी आपको आगे आ रहे थे। उस हिसाब से कैसा फील हो रहा है? अगर आप आम स्कूल में होते आपको ऐसा शायद नहीं मिलता। जी तो क्या लग रहा है आपको? जी जी, बिल्कुल सही है आपकी बात, मतलब बहुत स्पेशल फील हुआ जब लोग आपसे मिलने आते हैं, मतलब आप उनको जानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपसे बड़े अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, जब आपको रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है तो फीलिंग्स अच्छी आती है। शब्बीर, अगर आपको बता दें कि एक मैसेज आपका क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नवोदय से बाहर है, खासतौर पर आपके बेचमेंट्स को मैं अगर आपका एक मैसेज बता दूं, क्या बताओगे आप अपना मैसेज, जो अभी यहाँ पे नहीं है, कैसे मिस कर रहे हो आप उनको, या फिर वो आपको कैसे मिस कर रहे होंगे? मैं इनको यही कहूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो आप लोगों ने मिस कर दी, एक
मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब ये है कि एक हो जाता, मतलब सबसे मिलना जुलना हो जाता, तो काफी अच्छा रहता उनके लिए भी, हमारे लिए भी एक मोटिवेशन। हमेशा आपके जो पीयर्स होते हैं वो हमेशा आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। शबीर, मैं आपको यहाँ पे एक चीज याद दिला दूं कि समिति ने अब एक ऐसा फैसला उठाया कि हर साल दिसंबर के पहले जो मंथ का जो पहला संडे होगा, हर साल ये एलुमनी मनाया जाएगा। तो आप अपने जो क्लासमेट्स से या फिर अपने बैचमेट जो भी अपने आपके जानते होंगे JNV गांधरबल के, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जो प्लीज नेक्स्ट ईयर जरूर आइए। इस साल अगर आप आते तो आपको पता चलता कि ये जो फंक्शन है काफी अच्छा रहा, और उन्होंने आई थिंक जहाँ पर्सनली आई फील कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब होपफुली जब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा तो वो जरूर आए। आप इस टाइम पे जवाहर नवोदय विद्यालय गांधरबल में है, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मेरा नाम फातिमा रसूल है, मैं 2015 की हूँ, मतलब उसी बैच में हूँ। सर एक्चुअली मतलब आई थिंक दिस इज मतलब ब्लेस्ड एंड गुड फिट फॉर वी स्टूडेंट दैट वी आर वंस अगेन रिमेंबर्ड इन दिस होल इंस्टीट्यूशन। इट्स रियली मतलब फॉर्चुनेट फॉर सर। रही बात स्टाफ की, मतलब आई थिंक इट इज दैट इंस्टीट्यूशन इन विच वी हैव फाउंड मतलब स्टाफ, ऑल टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनने हमें बहुत अच्छे से मतलब who bring the life statues into life and actually मतलब we were nothing, इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था, बट यहाँ पे इंसान स्किल सीखता है, स्किल इंसान को मिलता है, इंसान को अपॉर्चुनिटी, मतलब we are lucky one that we had opportunity to study in this school. Now I just request to all the students, just work hard, go ahead, make all mistakes, make all you can. I think this is that where you can find success. Just to go ahead and मतलब ये बहुत अच्छी opportunity, इससे मतलब this is that school which provides such facility which are not मतलब available to others. So just go ahead, make कोई mistakes. सजेशन आपके लिए जो आने वाले स्टूडेंट्स है या जो ऑलरेडी एनरोल है यहाँ पे? मेहनत वालों की कभी हार ही नहीं होती है, इंसान चाहे मतलब कितनी भी मेहनत, मतलब हमेशा जीत अल्लाह के पास ही होती है, जिल्लत और इज्जत वो सब अल्लाह के पास होती है। हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर कहा जाए पहाड़ों से निकली हुई नदी ने भी आज तक रास्ते में किसी ने नहीं पूछा कि समंदर अभी कितना दूर है, इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। बाकी जो दैन है वो अल्लाह के पास है, जिल्लत और इज्जत वो सब अल्लाह के पास है हमेशा। इवन हमें अच्छाई की शुरुआत अपने आप से ही करनी चाहिए, फिर चाहे मतलब जिंदगी को हम जैसे देखना चाहेंगे वैसे ही बनेगी और वैसे ही मतलब जी सकते हैं। बस ये मतलब हमारे तक ही है, बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत वालों की कभी हार ही नहीं। यूज योर विजडम एंड अचीव सक्सेस। थैंक यू, थैंक्स हैव तौहीद NVS समिति ने किया था ऑल इंडिया में। आज फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फर्स्ट संडे को किया जाएगा सेलिब्रेट एज एलुमनी मीट, तो इसी वजह से उन्होंने इन्वाइट किया था हमें, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई गॉट एन, तो अच्छा तो ये मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे स्टेट एजुकेशन सिस्टम है और ये जो CBSE का यहाँ पे खासकर NVS जो है ओवरऑल समिति, उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई वुड लाइक टू कोट एक एग्जांपल मैं दूंगा, A+B² या A-B² आप कहीं भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल गांधरबल, सोरा, श्रीनगर में सीख सकते हैं, बट मेन पर्पज यहाँ आने का वो नहीं है। The concept behind this school is being Navodyan is to get oral development. Besides educational, this academics, you have to excel in sports, CCA. So main motive of the institution was NVS was कि बच्चे जो हैं talented जो है जो entrance के बाद यहाँ आते, that means जब भी कोई student 6th में entrance के बाद यहाँ आता है, that means that is the cream of the district. तो वो cream यहाँ आती है, फिर उसको excel करना है not in academics but also in other fields of the life. थैंक यू। मैं मीर इकबाल, फार्मर स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय गांधरबल और जवाहर नवोदय विद्यालय पुलवामा से हूँ। इस वक्त में अपने उस स्कूल में है जहाँ पे मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। अगर मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में कहीं पे भी हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस मुझे लगता है ज़िंदगी में गेन किया है बिकॉज ऑफ दिस नवोदया, जिस नवोदय ने मुझे ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है। मेरे साथ और एक जर्नलिस्ट है इस एलुमनी मीट में आज मेरे साथ है। मैं ज़रा उनसे एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको डिफरेंस लग रहा है जो स्टेट एजुकेशन सिस्टम है और जो NVS समिति जो CBSE पढ़ा रही है,
पूरे इंडिया में उसमें क्या डिफरेंस है? थैंक यू इकबाल भाई। पहले से मुझे अल्फाज भी नहीं है, मैं अल्फाज कैसे इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, क्योंकि एलुमनी मीट का मुझे बहुत पहले से शौक था कि हम ऐसे जो फ्रेंड्स हमसे बिछड़ रहे हैं उनसे मिले, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे जो अहम हिस्सा होता है वो हमारी टीन एज का होता है, वो हमने यहीं पे गुजारा होता है नवोदय में। 6 से लेकर 12 तक हमारा जो हमारा अच्छे दिन थे, हमारे खेलने के लिए दिन थे, वो हमने यहीं पे गुजारे होते हैं। तो हमारे जो इस एज के फ्रेंड्स होते हैं हम उनको भूल जाते हैं, यहाँ से निकल के अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन एलुमनी ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे हम एक बार उनसे फिर मिल सकते हैं। आज इससे पहले एक बार हुआ है जेएनयू में एलुमनी, वो मैंने इसमें अटेंड किया, लेकिन अब भी थोड़ी सी ज़रूरत है कि इसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी होनी चाहिए। पब्लिसिटी हम खुद भी कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं जो भी जर्नलिज्म फील्ड में है, अगर हमें थोड़ा सा ये मौका दे दे कि हम उनकी पब्लिसिटी करते हैं, ताकि जो भी एलुमनीज यहाँ के हैं वो एक बार यहाँ पे आए, हम एक बार सबसे मिल सकेंगे। उससे सबसे बड़ा ये फर्क पड़ता है, सबसे बड़ा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये जहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्हें पता चलेगा कि हमारे सीनियर्स थे यहाँ पे, ये यहाँ से जाके बैठे नहीं है, इन्होंने कुछ अचीव किया है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ़र्क है स्टेट के जो स्कूल से और यहाँ के जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी एक स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय से पास होकर निकलता है, बाकी 1 साल के बाद सब भूल जाते हैं कि कौन किस फील्ड में चला गया, कौन कहाँ पे है। ये एलुमनी मीट इसलिए मनाई जाती है ताकि ये पता चले कौन किस सेक्टर में है, कौन किस फील्ड में है। ये मीट इसलिए भी मनाई जाती है कि जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स, आने वाले बैच होते हैं जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं, उनको हम गाइड करें, जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी नवोदय बच्चे अवेलेबल है जो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, जो उनको गाइड कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और जो उनको एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन दे कि किस एरिया में आपको जाना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जो यहाँ पे फार्मर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनसे हमारे जो जूनियर यहाँ पे है उनके लिए एक मैसेज होना चाहिए, ताकि जो हमने प्रॉब्लम्स करियर काउंसलिंग से रिलेटेड की है ऑलमोस्ट 12th के बाद, वो आप जो अभी इसमें ऑलरेडी एनरोल है उनके साथ ना हो। इर्शाद साहब, इकबाल साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, छोटा सा सवाल होगा कि आपने देखा होगा यहाँ से जाकर आपने फेस किया, आपने यूनिवर्सिटीज फेस की, कॉलेज फेस किया, उसके बाद आपने एक डिफरेंस देखी होगी जो फील्ड में नहीं मिली होगी आपको। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी आपको शायद उतना साथ नहीं दे रहे थे जितना आपको यहाँ पे टीचर दे रहोगे या आपके यहाँ पे सीनियर दे रहोगे। बीइंग ए सीनियर, आपका एक छोटा सा मैसेज क्या होगा जो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी इस एलुमनी मीट को मिस करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरी एक छोटी सी मैसेज ये है कि मैंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया। अभी मैं एक टॉप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगा कि नवोदय में जो टैलेंट मिलता है, नवोदय के बच्चे जो ऑलरेडी जिनकी पॉलिशिंग हुई होती है इन 7 सालों में, वो बाकी स्कूलों में देखने को नहीं मिलते। मुझे लगता है सबसे अहम ज़रूरत यह है कि एटलीस्ट 11th या 12th में करियर काउंसलिंग होनी चाहिए नवोदय में, ताकि बच्चे को पता चले आगे कौन से एग्जाम्स है, आगे कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सा फील्ड है, कौन कौन सा करियर स्कोप है 12th के बाद, क्योंकि ये सब हमें पता नहीं है। ऑलमोस्ट जो नवोदय से निकलते हैं उनको ये सब पता नहीं होते। मुझे लगता है कुछ 4-5% लोगों को ये पता होता होगा, लेकिन उसके बाद जो 95% बच्चे हैं उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम जो सीनियर्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये कम्युनिकेट करें कि कौन कौन सा स्कोप है आपके लिए, कौन कौन से बीट पे आप काम कर सकते हो, कौन कौन से फील्ड में आपके लिए स्कोप है। मुझे लगता है ये हमें इस टाइम पे जो यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे एनरोल है उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका मतलब ये होगा एक बात साहब कि अगर एलुमनी मीट नहीं मनाई जाए, उसके बगैर भी यहाँ के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अच्छे पोस्ट पे, उनको साल में 1-2 बार अगर यहाँ पे बुला के बच्चों के साथ काउंसलिंग होगी तो उससे ये बेटर फील्ड है, हमें ये फायदा रहता है। जहाँ पे बच्चे हैं उनका एक रास्ता मिल जाता है, उनका एक वे मिल जाता है कि वो किस रास्ते पे जाए। शायद आपका कहना ही ऐसा ही है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना है कि अगर किसी बच्चे में कोई पर्टिकुलर टैलेंट है लेकिन उसको पेरेंट्स और टीचर्स मोटिवेट करें कि इस फील्ड में ना जाए। लेकिन मेरी सजेशन है कि आप सीनियर्स को कंसल्ट करिए और उनसे पूरी डायरेक्शन ले लीजिए, पूरा उनसे जो उनका एक्सपोजर है उनसे सीख लीजिए, ताकि आपके करियर में आपको कोई रुकावट ना आए। आप अभी तक पहले ऑनलाइन देख रहे थे, उम्मीद करते हैं अगले साल फिर हम आपको मिलेंगे, और उससे पहले अगर यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ एक बार फिर हम इस फंक्शन को यहाँ से लाइव टेलीकास्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।